बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? Okay, so in last class we have discussed buck converter, its few of the design equations, and we have found out the current rating and voltage ratings of the all components: inductor, capacitor, MOSFET, which is the control switch, and the diode. So let's look at the inductor current rating. So we have 2 divided by under root 3 into IDC or I out. So we take this as RMS of the inductor current, and accordingly we select the component. For capacitor we also have RMS value, that is IDC divided by under root 3. So capacitor current, because it is going to consume only current ripple, so therefore its RMS current is smaller than the inductor current, twice smaller than inductor current rating. And then we have MOSFET and diodes current ratings, and we take them as of inductor current, but for the safety we add few component to it, because the inductor itself is quite robust component, so it is not going to damage, and only way to damage the inductor is to carry a very large amount of current. RMS current should be higher than the selected value, obviously, then inductor can be damaged. So for MOSFET and diodes, current ratings will first select similar to the diode, similar to the inductor current, and then we are going to take the scenario that if current, if switch is closed for a very longer time, for the if duty cycle approaches unity, then the current of MOSFET going to rise to a very larger value, and therefore in this case the peak current of the switch should be still less than the selected value. So let's say if we have selected the current equal to 20 amperes, that means the peak current of the switch maximum should be less than 10 amperes. So at least half of the difference should be in this. So this ensures the safe operating area for the MOSFET, and similarly for the diode. So in diode we will also assume that worst case scenario, when the duty cycle is very small, then most of the current is passing through the diode, so therefore its peak current of the diode should also be less than the selected diode current. So let's say we have selected a device with 20 amperes capability, then its peak should be less than 10 amperes, and therefore we are going to ensure the safe operating area for the diode. So keep in mind that the maximum peak
which can be which can flow through the diode or switch, it still should be half of the overall current for which device is selected, so that we have quite large margin. And if we talk about the RMS value, then RMS current actual current is around 5 amperes. So just to keep in mind that the RMS current, and then there could be some peaking of the current, so there should be a margin, and then from the peak there should also be a margin of the maximum current, which should give us safety or safe operating area one wire. ठीक है जी? Okay, so then we find out the value of inductor current, critical inductance, and critical inductance is for the worst case scenario. And we know that in worst case scenario, the ripple factor is around 200%. So therefore, this critical inductance is going to be very, very small. And for actual inductance, this should be very large compared to the critical value. For example, if critical value comes out to be 1 microhenry, then the actual inductance value should be around 100 or even higher microhenries. So in this way, this critical inductance calculation help us to find out the approximate value, which is going to be very high than the critical inductance value. Similarly, for the capacitance, we also find out the critical value of the capacitance, and in this case, ripple factor is also going to be very high, and this is also 200%. So, like in previous case, we have designed inductance so that the ripple factor is less than 10%. And in case of capacitance, because it is going to be reduce the voltage ripple, so therefore the ripple factor for which we want to design the capacitance or select the capacitance value should be less than 5%. So this C value should be much more larger than the critical value. Similarly, approximately, if let's say the critical value comes out to be 1 microfarad, then we take the capacity around 100 microfarad. So now let's look at the voltage rating of the diode, MOSFET, inductor, and capacitance.
So when the switch is closed, diode is going to be reverse bias. It is not going to conduct. So therefore, Vn is going to appear across the diode. And capacitor gets the voltage which is equivalent to the output voltage because it is in parallel with the load. And when switch is open, then voltage across MOSFET becomes equal to the input voltage because diode bar gets short circuited and we have a ground over here. So therefore, the voltage across MOSFET is equal to the input voltage. And similarly for the for all three components voltage value, inductor does not affect by the voltage because its average voltage is going to be 0. So therefore, for diode and MOSFET, its voltage values we are going to keep again the same range. So therefore, we will multiply input voltage by 2 to get the voltage for MOSFET and diode. Similarly for the capacitor, and this is the minimum possible option. For example, if the input voltage is 24 volts, then MOSFET according to this is going to be 48 volts. But maybe in the market we don't have 48 volt MOSFET. So it doesn't mean that to get 48 volts MOSFET we have to buy a expensive component. So that means we can take even voltage higher. If 100 volts MOSFET is available or higher voltage, we will select that. Similarly for the diode, we don't need to take care of exact 48 volts. If diode is available for 100 volts, which is the closest to the selected value, then we select that diode. Similarly for the capacitor, we are going to calculate our value, but we'll be using capacitor whatever is available in the market. So let's now talk about why we were avoiding going into discontinuous conduction mode in DCM, discontinuous conduction mode. We always try to avoid that because in discontinuous conduction mode, the parasitic components, especially the capacitances, their effect is very high. For example, and we have also talked about how we are going to get into this discontinuous conduction mode, and that is for very light loads. Light load doesn't mean it has to deal with light. Light means the amount of current is very small. That is meant by light load. Okay, so amount of current out is less than 1 ampere, for example. So for power circuits, current less than 1 ampere is a very small current load. So so one factor could be the load. Load is very small. Second factor could be the operating frequency. So as
we discussed earlier in the start of this section that if normally inductor current is continuous, so this is inductor current, and average of this is the output current. So if output current is very small, so then inductor current comes out to be like this. And this kind of current of inductor is discontinuous. When inductor current starts from 0, goes to its peak value, then drops to 0 again, and then stays at 0 for a while. So that is the DCM mode of operation. Okay? So inductor current has to cut or hit 0 or stay at the 0 position. So that is called DCM, discontinuous conduction mode of operation. So what happens in this case is diode opens to prevent backward current flow, because the current flow could be like this, flowing through the diode and before flowing current in this direction, the diode is open to avoid the current flow in opposite direction, because diode has a very small junction capacitance. So therefore there is some current flow, but the amount of current flow is very small. And secondly, the small capacitances, junction capacitances, they can act as parallel with the semiconductor devices, and it is going to be in series with the overall capacitance. So as current is going to be like this, so therefore the parallel combination and then series combination of capacitances, the overall capacitance will be very small, and therefore the oscillation will be very high. So LC capacitance resonance impedance would produce some oscillation in the operation. We'll look into this in next slide. And then we have output capacitance in series with the overall parasitic capacitances, and therefore the large capacitance is going to be ignored in the oscillation phenomena, and oscillation will result only because of this parasitics. So let's look in this slide. So this is basically the resonance. सर पैरासिटिक का क्या मतलब है? सॉरी एक सेकंड, थोड़ा ऊंचे बोलिएगा, आवाज जरा कम आ रही है। सर पैरासिटिक का क्या मतलब है? एक सेकंड, जी दोबारा बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि पैरासिटिक का क्या मतलब है? सॉरी आपकी आवाज ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही।
सर पैरासिटिक का क्या मतलब है सर नग्यार पूछ रहे हैं कि पैरासिटिक का क्या मतलब है। और पैरासिटिक क्या क्या है मतलब? अच्छा, पैरासिटिक बेसिकली जैसे कि हमने जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि जो हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं दे हैव देयर कैपेसिटेंसेस, ठीक है। तो पैरासिटिक, व्हाई वी कॉल इट पैरासिटिक, बिकॉज देयर वैल्यूज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एक्चुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। यानी कि एक्चुअली जब हम मॉसफेट बना रहे हैं तो वी डोंट हैव इन माइंड कि हम मॉसफेट की कैपेसिटेंस बना रहे हैं, ठीक है। वी आर क्रिएटिंग मॉसफेट फॉर टू हैव अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल होनी चाहिए लेकिन बीच में कैपेसिटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। सो दिस पैरासिटिक कैपेसिटेंस इज बिकॉज ऑफ द जंक्शन कैपेसिटेंस एंड बिकॉज इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पैरासिटिक जंक्शन कैपेसिटेंस, ठीक है। सिमिलरली फॉर मॉसफेट एंड फॉर डायोड, तो अब ये दो जो कैपेसिटेंस हैं ये आपस में पैरेलल में होंगी तो दे वुड गेट सम अप, ठीक है। और फिर जब सीरीज में आएंगे तो पैरेलल इक्विवेलेंट होगा, और पैरेलल इक्विवेलेंस में क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज इवन स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस, राइट, ठीक है। सो देयरफॉर आपके जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसके ऊपर कैपेसिटेंस का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, आउटपुट कैपेसिटेंस का है, और ये इस तरह करके आपकी जो वोल्टेज स्पाइक्स होंगी वो इस तरह से क्रिएट हो रही होंगी अक्रॉस द इंडक्टर, और जिनके अंदर आप ये देख सकते हैं कि वी हैव अ रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे है लेकिन स्मॉलर है, यहाँ पे ये जब स्विच कर रहे हैं तो इंडक्टेंस की वजह से, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से वी हैव दिस रिंगिंग इफेक्ट, ठीक है। सो दिस रिंगिंग इफेक्ट, दिस ऑसिलेशन is because of the discontinuous mode of operation. Okay. So at very high frequency, 650 kilohertz, the inductance value is 100 microhenry, but the net parasitic capacitance is very small, 0.6 nanofarad. Okay. So this 0.6 nanofarad is capacitance of the switch plus capacitance of the diode. स्लाइड शो कर दीजिए। और ये चूंकि रिलेटिवली बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल, सो देयरफॉर द नेट कैपेसिटेंस इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज गोइंग टू बी सर स्लाइड विजिबल नहीं है सर। जी सर स्लाइड विजिबल नहीं है। ओह सॉरी, हाँ अभी ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम स्विचिंग कर रहे होंगे तो स्विचिंग के दौरान आपके ये जो इम्पिडेंस बनेगी एल और सी के साथ रेजोनेटिंग इम्पिडेंस, दिस वुड क्रिएट ऑसिलेशन, ठीक है। और ये इस तरह की आपको ऑसिलेशन जो है वो नजर आएंगी वोल्टेज वेवफॉर्म्स के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पैरासिटिक कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये वजह है बेसिकली जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा करंट जो है वो कंटिन्यूस रहे और कभी भी
डिसकंटिन्यूस में ना जाए as far as DC to DC converters are concerned. Okay. So as we have discussed that the DC to DC converter is basically going to be very similar as we have a transformer. ठीक है, so DC to DC converter को हम उसी तरह से कहेंगे कि ये हमारा DC ट्रांसफार्मर है। बेसिकली इसके अंदर हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर रहे, वी जस्ट हैव वन इंडक्टर, कैपेसिटर, मॉसफेट एंड डायोड। ठीक है, उसमें हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर रहे, बट द होल सिनेरियो, होल DC DC कन्वर्टर वर्क्स आउट टू बी लाइक अ DC ट्रांसफार्मर। सो इसमें क्या हो रहा है कि आप बक कन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज जो है वो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू ले रहे हैं। Vn is high and Vout is small। ठीक है, लेकिन करंट के हवाले से ऑपोजिट है। सो इनपुट करंट versus output current, input current is small whereas output current is large in case of buck converter। Similarly, अगर हम स्टेप अप कन्वर्टर जैसे बूस्ट है उसको जब डिस्कस करेंगे तो उसमें सिचुएशन विल बी ऑपोजिट। So what is impedance matching? Impedance matching means we should know how much is the resistance which is connected on the load side is equal to the input impedance। ठीक है, यानी कि जो अगर मैं R in पे देखूं तो ये जो R लोड है ये कितना नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि हम ट्रांसफार्मर में करते थे। इफ यू रिमेंबर वी डिड द सेम थिंग इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और हमारे पास प्राइमरी साइड पे अगर कोई इम्पीडेंस कनेक्टेड है ठीक है, तो हम इस साइड पे अगर हम उस इम्पीडेंस को देखें तो ये हमारे पास उसका इक्विवेलेंट नजर आएगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हमें AC सोर्स के लिए, साइनोसॉइडल सोर्स के लिए ये हमारे पास जो Z इक्विवेलेंट आएगा दैट वाज Z लोड डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर सिनेरियो हमने देखना है यहाँ पे फॉर DC टू DC कन्वर्टर कि हमने आउटपुट साइड पे अगर एक इम्पीडेंस एक लोड कनेक्ट किया है तो हाउ मच लोड इज गोइंग टू बी अपीयरिंग अक्रॉस द इनपुट साइड, सोर्स को कितनी इम्पीडेंस नजर आए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आर इन। ठीक है, कि इनपुट के ऊपर कितनी इम्पीडेंस नजर आएगी अगर मैं लोड को देखूँ तो। सो फ्रॉम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, इनपुट वोल्टेज अगर मैं इसको कहूँ आर इन है, so this equivalent resistance which is R in can be found out by ratio of V in by I in। V in we know that is V out over D and I out multiplied by D is the I in। So therefore we find out V out by I out and divided by D square।
So therefore R in is equal to the R load divided by the D square. So D, as we know here, is operating as turn ratio for the transformer. Okay? So duty cycle, or D, is just like acting as a number of turns of the transformer. ठीक है? So यहाँ पे हमारे पास DC transformer में we are going to use duty cycle, whereas in AC transformer we are going to use the number of turns ratio. ठीक है? So this is how we get the resistance, equivalent resistance on the input side, whereas the load is connected on the output side. So अब क्या होगा? Because the duty cycle is less than 1, so taking square value of less than 1 increases even higher, reduces even smaller value d square, and therefore R in is going to be very large as compared to R load. R load is going to be small, and the equivalent resistance is going to be quite large. Okay? So let's look at the example. Very important and very interesting example, in which we are going to use a solar panel, and this curve is for the solar panel. So as you can see, for very high output voltage or very smaller load, we can get the maximum voltage across PV panel is 40 volts. That is around open circuit voltage. So that means if we have very small current which is consumed by the load, then we can get this open circuit voltage. On the other hand, if we have a very small resistance, then the small resistance is going to consume very large current, and the short circuit current is around 5.4 amperes. So PV panel cannot give us more than 5.4 amperes of the current. Okay? So there is a limitation. Similarly, we cannot get output voltage higher than 40 volts out of PV panel. So now let's assume the maximum power points at which can be taken out from the PV panel. यानी कि जो maximum power हम extract कर सकते हैं PV panel से, that maximum power is 130 watts. ठीक है? So basically, how we are going to get the P? How we are going to get the power out of PV panel? So, like we have multiple points on the VI curve of PV panel, and we can calculate the power from these points, and then we know where is the maximum power exist. Okay? So let's see, this point is around 35 volts, and
2.6. So power for this is 35 multiplied by 2.6, let's say. Okay, so this is going to be 70 plus 91 sir. more 20. So it is 90. going to, yeah, so it is going to be around 90 watts. So this is not the maximum power. Similarly, we can get power for this voltage for this point, and 20 volts, and the current is around 5.3. Okay, so the power is going to be around 100, let's say 105. 06. Still, it is less than 130 watt. So this 130 watt is we can achieve only when we are getting the voltage out of PV panel is around 29 volts and 4.5 ampere. ठीक है, तो फिर इस तरह से करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कितनी रेजिस्टेंस पीवी पैनल पे डायरेक्टली लगाएं, so that this resistance is going to consume 130 watts. Okay, so for maximum power from panel at this intensity level, जो भी intensity level है, because if intensity level will change, the whole curve is going to change. Okay, so therefore if we find out the load with respect to this maximum power point, 29 volts divided by 4.5 amperes, we get 6.44 ohm resistance. Okay, that means if we have a PV panel and light is falling on it, and according to the light intensity, we get 130 watts out of PV panel, and the resistance which we should connect at the output must be 6.44 ohms. Okay, so if this resistance is equal to 6.44, PV panel is ensured to operate around maximum power point. ये पॉइंट समझ आ गया? Yes, sir. ठीक. So now अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे है, and that is this line. This line is not drawn by the PV panel company. ठीक है, जो जिसका पीवी पैनल है वो हमें सिर्फ एक VI कर्व देगा, ये सर्कुलर जो है नॉन लीनियर कर्व. ये जो लीनियर लाइन है ये हमने खुद ड्रॉ की. ठीक है, एंड एज यू नो कि अगर मैं रजिस्टर का VI कर्व ड्रॉ करूँ, ठीक है, ठीक है, लेट्स से रेजिस्टेंस इज नॉन, and resistance value is 10 ohms. तो कौन बताएगा इसका VI कर्व हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? This is I, this is V. How we can plot R equal to 10 ohms, sorry, volts लिख दिया. अगर मैंने 10 ohms का जो रेजिस्टेंस है इसकी
VI कर्व बनानी हो तो क्या करेंगे? विल सर 2 यूज पॉइंट ले लेंगे सर, कैलकुलेट कर लेंगे और उनके दरमियान लीनियर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे सर। बिल्कुल, हम इसके कुछ पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक कि अगर वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट्स हो तो करंट कितना होगा? वन 13 सर। और 130 के लिए अगर मैं 10 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाऊंगा और मेरे पास रजिस्टर जो है वो 10 ओम्स का हो तो ये कितना करंट आएगा? 1 एम्पेयर सर। 1 एम्पेयर, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह से फिर हम एक और पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 30 वोल्ट। हमारे पास 30 वोल्ट की सप्लाई है। सो 30 वोल्ट के ऊपर मैं अगर 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाऊं तो ये कितना करंट कंज्यूम करेगा? 3 एम्प सर। 3 एम्पेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को कंबाइन कर दूं तो ये जो मेरे पास लीनियर लाइन आई है दैट इज दी VI कर्व ऑफ दी रेजिस्टेंस, ऐसी है ना? यस सर। सो देयरफॉर ये जो आपको लीनियर लाइन नजर आ रही है, दिस लीनियर लाइन इज दी VI कर्व फॉर 6.44 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। वी कैन वेरीफाई दैट। लेट्स से 1 एम्पेयर ले, ठीक है। सो 1 एम्पेयर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो वी आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड पॉइंट। सो 5 और 10 का मिड पॉइंट होगा 7.5 पे, ठीक है। और ये 7.5 से थोड़ा दूर है तो अराउंड इट इज ऑब्वियस कि जो है वो अराउंड 7 या उसके करीब करीब वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन गो फॉर अ हायर पॉइंट, लेट्स से फॉर 4 एम्पियर, ठीक है। 4 एम्पियर्स के ऊपर अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी राउंड अबाउट 25 के करीब करीब आ रही है, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24 एंड देन 0.44 into 4 इज अराउंड 1.6। तो ये तकरीबन 26.4 और 5 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे है, ठीक है। सो ये वाली लीनियर लाइन आपको समझ आ गई, ठीक है। ये हमने खुद ड्रॉ की हुई है, दिस इज नॉट गिवन बाय दी मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने हमें सिर्फ एक ये VI कर दिया है जिसके ऊपर ये सारे ब्लू पॉइंट्स हैं और यहाँ से हमने मैक्सिमम पावर पॉइंट जो है वो फाइंड आउट किया, ठीक है जी। तो ये जो लाइन है ये इक्वल टू दी मैक्सिमम पावर पॉइंट है और वो हमने खुद ड्रॉ की है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि अगर मैं 2 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है। 2 ओम्स का मतलब क्या होगा? ये 5 एम्पेयर के ऊपर थोड़ी मैंने गलत शायद कर दी, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन 6.4 है, सो रेजिस्टेंस इज अराउंड 2 ओम्स, ठीक है। तो 2 ओम्स अगर मैं इसकी जो 2 ओम्स की VI कर्व है वो अगर मैं ड्रॉ करूं तो किस तरह से होगा? ये 10 के ऊपर कितना करंट आएगा? 5 एम्पेयर, राइट, ठीक है। 2 ओम की रेजिस्टेंस को अगर मैं 10 वोल्टेज प्रोवाइड करूं तो वो 5 एम्पेयर करंट कंज्यूम करेगा। सिमिलरली अगर मैं तकरीबन 5 वोल्टेज 5 प्रोवाइड करता हूं तो ये अराउंड 2.5 सेंटर पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो मैं इसको ये लाइन जो है अगर ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन जिस पॉइंट के ऊपर PV पैनल के VI कर्व के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ये
उस सूरत में है कि हमारे पास पीवी पैनल है और मैंने इसके क्रॉस 2 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, तो ये इसका वी आई कब होगा, और जो ये वाला पॉइंट है ये हमें बताएगा कि पीवी पैनल जो है वो आपको रेजिस्टेंस को कितनी पावर ड्रॉप कर रहा होगा। इज इट मैक्सिमम पावर पॉइंट? ठीक है, क्या ये मैक्सिमम पावर पॉइंट पे सोलर ऑपरेट करेगा? ओके। वो हमें वेव इंटरसेक्शन पॉइंट से भी नज़र आ रहा है कि ये सोलर पैनल के जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है उससे ये काफ़ी दूर है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो फिर मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका ये कितनी पावर जो है वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 5.4 के करीब करीब करंट है, और मैं अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स अराउंड 10.8 वोल्ट्स के अराउंड। ठीक है, सो 10.8 multiply by 5.4, this is going to get us the power of this point. ठीक है, और obviously this point is how much power we are going to get, around 55 something watts, which is less than power point. So this is not operating at power point. ठीक है, तो अब मैंने इसको पावर पॉइंट मैक्सिमम पावर जो है वो देनी है 130 वाट। व्हाट शुड आई डू? सर या रेजिस्टेंस को चेंज करें या ड्यूटी साइकिल को चेंज करें सर? वेरी गुड। लेकिन आपने ड्यूटी साइकिल कहा? यहाँ पे तो हम ड्यूटी कोई स्विच लगा ही नहीं रहे, तो ड्यूटी साइकिल किस चीज़ का होगा? अभी तो हमने पीवी पैनल को डायरेक्टली रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन हमने 2 ohms को ही 130 वाट प्रोवाइड करने हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो वो हम कैसे करेंगे? हाँ जी सर जिधर मैक्सिमम पावर दे रहा है 130 सर, उधर 29 वोल्टेज और जितनी करंट है V बटाए, वहाँ से जो आर लोड मैक्सिमम है। एक सेकंड। जी दोबारा बोलिए। सर वो कर्व पे जिस पॉइंट पे मैक्सिमम दे रहा है सर, उस पॉइंट पे वोल्टेज और करंट को V और I के साथ जो मैक्सिमम लोड आएगा सर, जिस पे मैक्सिमम पावर देगा। ठीक है, तो वो मैं मेरे पास अब रजिस्टर फिक्स है 2 ओम का है, तो मैं क्या करूँ? पीवी पैनल जैसे हमने अभी कहा कि मैक्सिमम पावर तब देगा अगर मैं रेजिस्टेंस जो है वो 6.44 लगाऊं। ठीक है, तो कोई तरीका है कि मैं 2 ओम की रेजिस्टेंस को 6.44 ओम की रेजिस्टेंस बना दूं? सर स्विचिंग के थ्रू, जो अगर हम PWM बेस स्विचिंग करते हैं मॉसफेट के थ्रू, ठीक है, तो सर वो उसके अंदर जो है हमारे पास इसकी सर जो इनपुट रेजिस्टेंस जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो सर डिफरेंट होगी, और वो हम कंट्रोल कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें? सर DC DC कन्वर्टर लगा दें सर। कहाँ पे? सर जो 2 ओम और जो PV पैनल के दरमियान सर। वेरी गुड।
तो वो जो डीसी डीसी कन्वर्टर है वो फिलहाल कौन सा होगा? बक कन्वर्टर सर। वेरी गुड। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर ये चीज डिस्कस की है कि अगर हम बक कन्वर्टर लगाएं तो ये क्या करेगा, छोटी रेजिस्टेंस को बड़ा कर देगा। और हमारे करंट सिनेरियो में हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 2 ओम की रेजिस्टेंस को हमने बड़ा करके 6.44 की रेजिस्टेंस पे लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज करेंगे बिटवीन पीवी पैनल एंड द लोड। ठीक है, तो हम एक बक कन्वर्टर लगा देंगे बिटवीन 2 ओम रेजिस्टेंस एंड पीवी पैनल। ठीक है, तो अब हमने बक कन्वर्टर को इस तरीके से ऑपरेट करना है, यानी कि जो ड्यूटी साइकिल हम इसका चेंज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। दिस ड्यूटी साइकिल विल कन्वर्ट द 2 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू 6.44 ohm resistance. Then we are sure कि PV panel is operating at maximum power point. ऐसे ही है? यस सर। सबको समझ आ गई ये बात? जी, if anyone have any question और उसको ये वाला पॉइंट समझ ना आया, we can repeat that. जी जरूर। हमारे पास, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 6.44 की रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 ओम की रेजिस्टेंस। मैंने 2 ओम्स की रेजिस्टेंस को 130 वॉट पावर प्रोवाइड करनी है, और 130 वॉट पावर मैं कब उसको प्रोवाइड करूंगा, जब सोलर पैनल जो है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन सोलर पैनल को अगर मैं डायरेक्ट 2 ओम की रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ 55 वॉट देगा। ठीक है, जबकि लोड को पावर जो चाहिए दैट इज 130 वॉट्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, वी नीड टू हैव अ डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इन दिस केस बक कन्वर्टर, सो दैट कि हम 2 ओम्स की रेजिस्टेंस को लार्ज करके पीवी पैनल के सामने रख दें, बिकॉज डीसी टू डीसी कन्वर्टर हैज कैपेबिलिटी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वर्चुअल रेजिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल रेजिस्टेंस 2 ओम है, लेकिन इसकी जो वर्चुअल रेजिस्टेंस होगी ऑन द इनपुट साइड ऑफ द बक कन्वर्टर, यानी कि जो आउटपुट है पीवी पैनल की, वो फिलहाल कहाँ पे जा रही है, बक कन्वर्टर। ठीक है, तो बक कन्वर्टर की जो इनपुट के ऊपर जो वर्चुअल रेजिस्टेंस होगी, यानी कि जो 2 ओम का इक्विवेलेंट होगा, वो हमें 6.44 करना है विद द हेल्प ऑफ ड्यूटी साइकिल। समझा की बात? चलो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जरा, ठीक है जी। सो मेरा जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है सोलर पैनल का, दैट इज ऑन 130 वॉट, और वो तभी हो सकता है कि अगर मेरे पास एग्जैक्टली 6.44 ओम की रेजिस्टेंस लगी हो। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो 2 ओम की रेजिस्टेंस है, और इस 2 ओम की रेजिस्टेंस को मैंने ऑपरेट करना है 130 वॉट पे। ठीक है, अगर मैं 2 ओम की रेजिस्टेंस डायरेक्ट पीवी पैनल पे लगाऊंगा तो मेरे पास जो पावर आएगी दैट इज 55 वॉट, लेकिन मैंने इसको ज्यादा पावर प्रोवाइड करनी है।
ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आई एम गोइंग टू कनेक्ट अ बक कन्वर्टर बिटवीन पैनल एंड 2 ohms रेजिस्टेंस। ठीक है, सो हमारे पास इससे पहले सिर्फ पैनल और लोड था, लेकिन ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसको मीट नहीं कर रहा। ठीक है, so therefore we have connected buck converter in between panel and load, or with the help of duty cycle we have modified the 2 ohm resistance to 6.44 ohms resistance, so that solar panel will feel कि 6.44 की रेजिस्टेंस लगी हुई है और वो मैक्सिमम पावर पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, बट इंस्टेड एक्चुअली वी हैव 2 ohms रेजिस्टेंस, और जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होगा बक कन्वर्टर, वो हमारा जो 130 वाट है दैट इज कमिंग फ्रॉम पीवी पैनल। So 130 watt is coming from PV panel to the buck converter, and going to the load. ठीक है, so load is 2 ohms and buck converter is changing this 2 ohm resistance to 6.44 ohms। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 2 ohm की रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम इसका इक्विवेलेंट मेजर करें ऑन द इनपुट साइड ऑफ द बक कन्वर्टर, पीवी पैनल की तो आउटपुट होगी, लेकिन बक कन्वर्टर की क्या होगी, इनपुट साइड। सो द इनपुट साइड ऑफ द बक कन्वर्टर शुड हैव रेजिस्टेंस 6.44। ठीक है, दैट मींस कि अब जो इनपुट वोल्टेज होगा बक कन्वर्टर का, ये कितना होगा, 29 वोल्ट्स एंड 4.5 एम्पियर करंट्स, बिकॉज हमने 2 ओम को बड़ा करके 6.44 के इक्विवेलेंट कर दिया है ऑन द इनपुट साइड ऑफ द बक कन्वर्टर। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम अगर हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो 29 है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट वोल्टेज? हाउ वी गेट द आउटपुट वोल्टेज? सिमिलरली, if we have 4.5 amperes input current, how much we will have the output current? ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसका हमने आंसर करना है। So first, let's change the resistance 2 ohm resistance to 6.44 with the help of duty cycle. So our equivalent, how we get? We have to divide our load, which is 2 ohms, with the duty cycle square. But we don't know what is going to be the duty cycle. So therefore, we want to evaluate that. We want to calculate the duty cycle. So therefore, our equivalent को हम replace कर देंगे, shuffle कर देंगे. Duty cycle is going to be here, and our equivalent going to be in the denominator. ठीक है, और दूसरा चूंकि स्क्वायर है तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, so that we get rid of the squared value. So now we have 2 ohms divided by 6.44 ohms, and we are taking under root of that and getting the duty cycle. अगर हम इस ड्यूटी साइकिल पे बक को ऑपरेट करें,
So the duty cycle at which buck is operating is 56%. ठीक है, सो अगर हम 56% पे बक को ऑपरेट करेंगे तो फिर ये रेजिस्टेंस जो है वो 6.44 होगी और जो इनपुट वोल्टेज होगा दैट वुड बी 29 वोल्ट्स 4.5 एम्पियर। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट विद द हेल्प ऑफ ड्यूटी साइकिल। So duty cycle is 56, input voltage is 29, output voltage is going to be smaller than that, and that is 16.24 volts. So if the voltage is 16.24, that is going to be applied to 2 ohm resistance. So therefore 16.24 divided by 2, we get the current and that is 8.12. ठीक है, so 8.12 हमने इस तरह से लिया है 16.24 divided by 2 ohms, क्योंकि लोड तो हमारा 2 ohm, एक्चुअल लोड तो हमारा 2 ohm है, ठीक है, लेकिन इसको हमने वर्चुअली चेंज कर दिया। So virtually we have changed this resistance to 6.44 at the input side. Okay, so this is R in. With the help of duty cycle, R in is equal to 6.44. So input current was 4.5 amperes, and now it has become 8.12. ठीक है, तो अगर हम इनपुट डिवाइडेड बाय ड्यूटी साइकिल 56% ड्यूटी साइकिल करें तो ये हमारा आउटपुट करंट आना चाहिए। ठीक है, तो 4.5 को अगर हम डिवाइड करें 56 से तो क्या आता है ये सर 8.035 आता है सर। जी कितना 8.035। 8.035। ठीक है, सो चूंकि ये किस सिनेरियो में है, दिस इज द सिनेरियो ऑफ लॉसलेस व्हेन वी हैव इनपुट करंट इक्वल टू द आउटपुट, सॉरी इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आई आउट मस्ट बी 8 पॉइंट कितना भी आपने कहा 35 सर 8.035। 8.035। अच्छा, मे भी हमने यहाँ पे फिर 56 की बजाय शायद यहाँ कुछ और भी हो सकता है। सर करंट की वैल्यू डिफरेंट ना हो सर, क्योंकि ग्राफ से नोट किया हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है। ये 29 है कि 30 है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ वेरिएशन हो सकती है। सो अप्रॉक्सीमेटली 8.03 और 8.12 में माइनर सा जो है वो डिफरेंस है।
ठीक है। सो हो सकता है ये 29.4 के करीब हो अगर हम इसको थोड़ा एक्यूरेटली देखें। ठीक है। सो दीज आर बेसिकली ओनली द कैलकुलेशन। So based on these calculations, we can find out the working of DC-DC converter. ठीक है। So now let's design a buck converter. तो buck converter जब हम डिजाइन करने लगेंगे तो हमें we have to see certain things. Keep in mind. और वो ये होगा कि normally PV panel they are installed at place where we have open environment. Closed environment में obviously solar panel पे sunlight नहीं आएगी। ठीक है। So to keep this PV panel get maximum power, we have to put the PV panel in open environment where we can get, or PV panel can get the maximum solar intensity. ठीक है। So therefore अब जो हम buck converter use करेंगे, that buck converter and PV panel may have a longer distance, और वो obviously हम वायर के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है। लेट्स से हमने PV पैनल जो है वो रूफ टॉप पे लगाया है और हम रूम के अंदर उस पावर को यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो देयरफॉर दिस लेंथी वायर इज गोइंग टू गेट सम इंडक्टेंस। ठीक है। सो दिस इज द वायर इंडक्टेंस which may be very small in the order of nano henry। ठीक है। लेकिन इट वुड हैव, और ऑब्वियसली इस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। ठीक है। सो टू कंटिन्यू टू मेक दिस इंडक्टर करंट, वायर करंट को अगर हमने कंटिन्यूस करना है, सो द रीजन द सॉल्यूशन इज वी शुड हैव अ कैपेसिटर between the buck converter. So this is buck, this is panel plus wiring, ठीक है। So therefore to make the current continuous हम एक कैपेसिटर लगाएंगे। So we will put a capacitor at the input side so that we can reduce the ripple current which is coming from initially। ठीक है। So इंडक्टर जो है वो करंट रिपल बना सकता है, so we should minimize that ripple current। ठीक है। सिमिलरली हमने करंट को की जो रिपल्स हैं उनको कम कर दिया, ओब्वियसली साथ ही हमने वोल्टेज स्पाइक को भी कंट्रोल कर लिया। ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर है तो इनपुट के ऊपर अगर कोई वोल्टेज की वेरिएशन होगी तो ये कैपेसिटर उन वेरिएशंस को, यानी कि अगर लेट्स से पीवी पैनल के ऊपर लाइट इंटेंसिटी जो है वो कभी थोड़ी बहुत चेंज हो रही होती है, तो और अगर वोल्टेज 29 प्लस माइनस सम डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इज द रिपल, डेल्टा वी, तो कैपेसिटर जो है वो इस डेल्टा वी को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। सर एक क्वेश्चन है सर। जी प्लीज सर इसके अंदर जो इंडक्टर है सर वो मतलब जिस तरह सर हमने फ्लाईबैक डायोड लगाया था ताकि वो अगर जब मॉसफेट जब ओपन होएगा तो सर हमारा जो है वो करंट को फोर्स करने की कोशिश करेगा इंडक्टर, तो सर इस केस में हम फ्लाईबैक डायोड क्यों नहीं लगा रहे हैं सर, जो बिफोर जो स्विच जो है सर?
किस आप सजेस्ट करें कहाँ पे लगाएं? यहाँ पे? सर इसे पहले मतलब इंडक्टर से पहले अगर हम लगा लें तो पीवी पैनल क्या होता है बेसिकली? अच्छा ठीक है यानी सर आप राइट कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक डायोड लगा दूँ, वायरिंग से पहले मैं यहाँ डायोड लगा दूँ, ऐसे कह रहे हैं आप? ऐसे है ना? सर इनके दोनों लाइंस के दरमियान पैरेलल में नहीं होएगा सर, जिस तरह हमने आगे बक वाली साइड पे किया हुआ है सर? अच्छा, ऐसे प्लस और माइनस के दरमियान? यस सर। ठीक है, यानी कि मैं अगर इसको थोड़ा इस तरफ बनाऊं तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं एक जो है वो ऐसे लगाऊं। यस सर। ठीक है, ये लेट से ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, और इसके आगे जो है ये इंडक्टेंस आ रही है, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, अच्छा चलें, लेट सपोज अगर हम इस तरह कर लेते हैं तो इसका हमें को फायदा है? सर वोल्टेज स्पाइक को रिड्यूस नहीं करेगा जब ये हमारा जो मॉसफेट ऑफ होएगा सर? लेट से हम कैपेसिटर नहीं लगा रहे और हम ये कॉन्फ़िगरेशन लगा रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा कि हम स्विच को ऑन करेंगे तो जो आगे जो स्विच के क्रॉस वोल्टेज है, यानी कि स्विच के थ्रू डायोड के क्रॉस स्विच से होके ठीक है, तो यहाँ पे जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज है, एक ये इनपुट वाला आप कह रहे हैं डायोड लगा दें और एक ये बक वाला डायोड, ठीक है? तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो इस तरह का होगा। सही है? राइट सर। चल, और जो इधर से जो करंट होगा वो ऐसे फ्लो करेगा और ये करंट यहाँ नेगेटिव से वापस आएगा, ठीक है, ऐसे वापस आ जाएगा और ये इसको इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो फिर आपका पीवी पैनल तो यहाँ से फारिग नहीं हो गया? जी सर बिल्कुल राइट सर। जो करंट की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो यानी कि यहाँ पे तो हम चाह रहे हैं ना कि वोल्टेज मेंटेन रहे 29 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अगर ये डायोड कंडक्ट कर गया तो ये पीवी पैनल को शॉर्ट कर देगा। यस सर राइट सर। समझ रहे हैं ना बात? अगर यहाँ से करंट वापस आता है और यूं इस तरह से ये चलाने की कोशिश करता है तो पहली बात तो ये है कि चलेगा नहीं। वाई? मैं भी जरा सही तरीके से बनाता हूँ ताकि ये वाला पॉइंट हम कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, ठीक है? सो एज पर सजेशन we are connecting a diode over here, then we have wire inductance, ठीक है? एंड सजेशन इज कि हम कैपेसिटर ना यूज करें और एक स्विच डायोड, ठीक है, और फिर इंडक्टर और कैपेसिटर यूज। चलो ठीक है। सो अब प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि मैंने जब इसको स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो करेगा और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट तो होगा ना, ऑल्दो कि बहुत छोटी इंडक्टेंस है, लेकिन इसकी कोशिश तो होगी ना कि करंट कंटिन्यूस रहे, यस सर। राइट? तो फिर भी यहाँ के लिए तो मसला है, ठीक है? तो हम बेसिकली इसको बचाना चाह रहे हैं और इस डायोड ने हमें इसको बचाने में कोई हेल्प नहीं की,
ठीक है। लेकिन इंस्टेड इसके अगर मैं इसको ना लगाऊं और यहाँ पे मैं कैपेसिटर लगा दूं तो फिर क्या होगा कि जिस वक्त स्विच को ओपन करेंगे तो करंट इसका इधर से ऐसे शॉर्ट सर्किट होगा। क्या कहते हैं, ये बेहतर है कि डायोड बेहतर है? सर कैपेसिटर वाला मॉडल सर। और आपको शायद पता हो कि जो पीवी पैनल होता है ये इसमें ये क्योंकि ये भी तो सेमीकंडक्टर भी होता है ना, तो इसके अंदर भी जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसका मॉडल देखें तो इसके मॉडल के अंदर भी एक डायोड होता है, यानी कि पीवी पैनल जो है ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल करंट आपको देगा बिकॉज कि इसका जो अपना जंक्शन है दैट इज एक्टिंग लाइक अ डायोड। ठीक है, राइट सर। तो इसलिए यहाँ पे हमें पैरेलल में डायोड लगाने की जरूरत नहीं है। और जो स्पाइक्स हैं वो ये इंडक्टर और कैपेसिटर मिल के वोल्टेज और करंट दोनों की स्पाइक्स को ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट द वैल्यू ऑफ दैट कैपेसिटर। So if we use a smaller capacitor 10 microfarad 50 volts, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम पीवी पैनल का जो वोल्टेज है दैट इज 40 वोल्ट्स। ठीक है, सो अगर हम लोड को डिसकंटिन्यू कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें और वक्त स्टिल कनेक्टेड हो तो पीवी पैनल का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा दैट वुड गो अप टू 40 वोल्ट्स। सो स्टिल वी हैव मार्जिन ऑफ 10 वोल्ट्स। तो अगर उसमें बीच में कोई 10 वोल्ट की स्पाइक आती है तो दिस कैपेसिटर कैन हैंडल इट। लेकिन अगर स्पाइक बड़ी हो जाएगी तो फिर हमें हायर वोल्टेज का कैपेसिटर जो है वो सिलेक्ट करना है। लेकिन जो कि हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है दैट इज 29 वोल्ट, तो कंपेयर टू 29 वोल्ट 50 वोल्ट इज हैज इनफ मार्जिन। ठीक है, कि उसमें आप स्पाइक्स को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। एंड देन the current is 5 ampere, so that's okay. High frequency bipolar unpolarized capacitor, और इसकी रीज़न ये भी होती है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी के जो नॉइज होता है वो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा, if that current contains harmonics plus DC करंट। ठीक है, कुछ हार्मोनिक्स तो आपका ये कैपेसिटर जो है वो आउटपुट कैपेसिटर कंज्यूम कर लेगा, लेकिन स्टिल अगर करंट में कुछ हार्मोनिक्स हैं तो वो ये हार्मोनिक्स करंट जो है वो इधर चला जाएगा और जो डीसी करंट है वो इधर आएगा। ठीक है, तो करंट के हवाले से भी ये कैपेसिटर जो है वो हमें बेनिफिट देता है कि जो करंट हार्मोनिक्स हैं, करंट रिपल्स हैं, वो कैपेसिटर जो है वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है जी, कैपेसिटर वाली कहानी क्लियर हो गई। सो ये इनपुट साइड का आप समझ लें कि फिल्टर आपने लगा दिया ताकि इनपुट साइड पे हर एवरीथिंग इज रिपल फ्री। So now let's look at the component values. So if we talk about inductor current RMS value, और उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था 2 डिवाइडेड बाय √3 I out। I out है हमारे पास ऑलमोस्ट 8 एम्पियर्स, सो 8 एम्पियर्स मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 ऑलमोस्ट 9 एम्पियर्स का करंट जो है
वो इंडक्टर का है, ठीक है. सो लिटिल बिट हायर देन द एक्चुअल RMS करंट ऑफ द आउटपुट साइड. सिमिलरली कैपेसिटर वोल्टेज 40 वोल्ट्स मैक्सिमम है पीवी पैनल का, उसका अगर 1.5 रखें तो 60 वोल्ट्स, तो हम सेफ साइड पे रहते हुए 250 वोल्ट का कैपेसिटर सेलेक्ट कर सकते हैं. Then comes the output current, because output current of the capacitor is I out divided by under root 3. So 1.7 almost 2 times reduce करेंगे, तो 5 ampere is enough type of current as far as capacitor is concerned. Next is the diode and MOSFET voltage. So हमने normally कहा कि twice of the input voltage. 40 volts input पे maximum possible है. So 80 volt का diode और MOSFET हमें मिलेगा नहीं. So we can select 200 volts, 250 volt MOSFET, diode, जो भी हमें market में easily available. Then we take the current as of inductor current. So 9 ampere is enough. ठीक है, लेकिन because of the worst case scenario of the duty cycle, so duty cycle can go maximum 1. उस केस में स्विच के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. ड्यूटी साइकिल कैन बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल अप्रोचिंग 0. डायोड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी जो पीक है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, सो देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू टेक 9 एम्पियर एज इट इज, रादर वी आर टेकिंग सेफ ऑपरेटिंग एरिया. ठीक है, तो हम 16 एम्पियर या 20 एम्पियर जो भी अवेलेबल होगा मार्केट में, हम अकॉर्डिंगली मॉसफेट और डायोड का जो है वो सिलेक्ट कर. ठीक हो गया. So now these are the voltage and current rating of the all 4 components. Now let's look at the values of inductor and capacitor. So we can find out the critical values. So critical value 8.1 ampere current, 50 kilohertz frequency, and worst case ripple 16 volts. So the critical value is 1 microfarad, and we can get a little higher than that. Similarly, output voltage is 16 volts, frequency is 50 kilohertz, output current is 8.1 ampere. So we can calculate the L critical value, and that is 20 microhenry. We can select 200 microhenry or 400. Current we have selected in the previous slide. Okay. So there is another formula. This is the minimum critical values. Then we can find out according to the ripple factor. So here 0.8 volt is the delta V, and V out is 16 volts. So almost how much is the ripple? So almost 5% is the voltage ripple, and ripple factor for current is 10%. Okay. So if ripple factor is 10%, the total current is 8.1 amperes. So the ripple is 10%, 0.8 amperes. Okay. So please be careful when calculating these
इंडक्टेंसेस एंड कैपेसिटेंसेस। अक्सर यहाँ पे आप जो है वो गलती ये करते हैं कि डेल्टा आई को ले लेते हैं 10%, विच इज अ रॉन्ग वैल्यू। डेल्टा आई इज नॉट 10%, इट्स रिपल फैक्टर इज 10%। ठीक है, सो इफ रिपल फैक्टर इज 10%, दैट मीन्स delta I divided by the DC current, that should be equal to 0.1। ठीक है, सो इसके अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि रिपल फैक्टर का मतलब ये नहीं कि डेल्टा आई आपका 0.1 है, बल्कि डेल्टा आई इज डेल्टा आई वर्सेस द डीसी करंट। डीसी करंट आपका है 8.1। ठीक है, तो 8.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, तो डेल्टा आई आ जाएगा 0.8 एम्पियर। So if taking the duty cycle, worst case that could be 0, क्योंकि अगर ड्यूटी साइकिल 1 रखेंगे तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, which does not give us any value। ठीक है, तो अगर हम ड्यूटी साइकिल 0 रखते हैं तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास, एंड दैट कम्स आउट टू बी 400 माइक्रो हेनरी। Similarly for the ripple factor 5%, अब आपने यहाँ पे डेल्टा V को 5% नहीं रखना, बल्कि डेल्टा V शुड बी डिवाइडेड बाय द V आउटपुट वोल्टेज। ये जो रेशो है दैट शुड बी 0.05। ठीक है, सो इफ आउटपुट वोल्टेज इज 16 वोल्ट्स, तो 16 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.05, डेल्टा V शुड बी 0.8 वोल्ट्स। सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, सो 50 माइक्रो और 400 माइक्रो हेनरी, ये वैल्यूज जो है वो आपको फार्मूले से मिल रही हैं, लेकिन 50 माइक्रो फैरड का आपको कैपेसिटर मार्केट में नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर यू कैन सिलेक्ट द वैल्यू विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसका वोल्टेज। सो कैपेसिटर के लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज और कैपेसिटेंस वैल्यू। इंडक्टर के लिए इट्स वैल्यू एंड द करंट, डायोड के लिए वोल्टेज एंड करंट रेटिंग, मॉसफेट के लिए वोल्टेज एंड करंट रेटिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन आवर बक कन्वर्टर फॉर सोलर एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक कर रहे हैं। वी कैन गेट द सोलर पैनल ऑपरेट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर हमारा एल मैक्स और सी मैक्स जो हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, इससे ग्रेटर वैल्यूज हो सकती है हमारी एल की और सी की? जी बिल्कुल, हम रख सकते हैं। राइट सर। ठीक है, तो हमारे लिए जो मिनिमम गाइडलाइन है वो क्रिटिकल वैल्यू, इसके आगे फिर हमें वो रिपल फैक्टर के अकॉर्डिंगली जो है वो सेकंड डिजाइन देखना पड़ता है। ठीक है, तो आपके जो न्यूमेरिकल में होंगे उसमें भी ये डिजाइन टाइप्स जो हैं वो दो तरह की हैं, कि एक आप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करें, और दूसरा अगर आपने रिपल फैक्टर को मिनिमम रखना है तो उसके लिए आप कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यूज बताएं। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाली भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो हमें मार्केट में अवेलेबल वैल्यूज हैं अगर पता हो तो दैट इज इवन बेटर, अदरवाइज दैट इज आल्सो ओके। अगर आप कैपेसिटर 50 माइक्रो और इंडक्टर 400 माइक्रो हेनरी का रख देते हैं, दैट इज आल्सो ओके। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको फिर देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, तो एटलीस्ट वो वैल्यू जो है क्रिटिकल से बड़ी होनी चाहिए।
ठीक है, और अच्छा खासा टाइम्स, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स और लेट्स से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स यहीं पे बढ़ा है। ठीक है, राइट सर। एनी अदर क्वेश्चन? So in next class we will be discussing boost converter. So that we'll do in the next coming class. ठीक है, so यहाँ तक हम आज तक रखते हैं. So if there is any question you can ask. If no question तो फिर हम यहाँ पे stop करते हैं.